स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीए एकेडमी। और आज हम करेंगे काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर में आज हम करेंगे सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, देन वी विल डू पैरेललोग्राम, law of vectors, then after that we'll do motion in a plane. So ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। It states that if two vectors acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in one order, their resultant vector is represented in magnitude and directed by the third side of the triangle taken in opposite order। इसको हम समझते हैं अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, विच स्टेट्स हियर कि इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल at the same time are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in one order, their resultant vector is represented in magnitude and directed by the third side of triangle taken in opposite order। ये कैसे? इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं अभी हम। यहां डायग्राम लेते हैं इसकी। सपोज मेरे पास ये ले लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं ओ पी, और एक वेक्टर ले लेते हैं हम इस तरह से, दिस वेक्टर विल बी पी क्यू। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा ये इस तरह से शो होगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, एंड ओपी को हम डिनोट कर देते हैं वेक्टर ए से, पी क्यू को डिनोट कर देते हैं वेक्टर बी से। सो इट्स रिजल्टेंट वेक्टर विल बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सो इसको अभी हम प्रूव करने के वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स कि इसका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले
सबसे पहले हम करेंगे इसमें, इसको मिटा दें यहां से। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ड्रॉ ड्रॉ यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं क्यू एन से, ये ओपी को एक्सटेंड कर देते हैं यहां पे। सो क्यू एन इज परपेंडिकुलर टू ओपी, दिस इज द परपेंडिकुलर, इसका नाम दे देते हैं एन यहां पे। सो क्यू एन इज परपेंडिकुलर टू ओपी विच इज द प्रोड्यूस्ड लाइन OP or OP vector you can say. Yes, so next will be OP vector मेरा क्या है, A vector, और PQ vector is my B vector. So and OQ is equal to R vector, right? सो यहाँ पे नाम दे इसको एंगल दे देते हैं बीटा और इसको एंगल दे देते हैं थीटा। यस, सो एंगल NPQ इज माई थीटा। नाउ इन ट्रायंगल QNP, इस ट्रायंगल में देखो QNP के अंदर देखते हैं, QNP में दिस विल बी PN अपॉन PQ विल बी इक्वल टू cos थीटा। सो PN इज, और यहां से PN अपॉन PQ इज व्हाट, cos थीटा, और Pn will be equal to PQ cos theta. So what is my PQ? What is my PQ here? PQ is my B vector. So this can also be written as B vector cos theta. We can give it number 1 also. Next is QN। यहाँ आप साइन थीटा देखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो QN अपॉन दिस विल बिकम QN अपॉन PQ। सो यहां से मेरे पास QN किसके बराबर आएगा, PQ साइन थीटा। सो PQ is what? PQ is B sin theta. So QN will be equal to B sin theta. This is number 2. अब हम ये राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ONQ in right angled triangle QNO or ONQ, whatever you wish. So here it will be, as we know from Pythagoras theorem, that hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square. So here what is hypotenuse? Hypotenuse is OQ square equal to perpendicular is QN square plus base is by ON square. Base is what? ON square. So here it will be QN will, what is QN? QN is my B sin theta.
whole square plus what is ON? ON can be written as OP plus PN. OP plus PN whole square. OP is my A vector. Let me first write it. This is my B square sin square theta plus OP is my A plus PN is my B cos theta whole square. So you can write it is in bracket here from 1. So B square sin square theta plus A square plus B square cos square theta plus 2AB cos theta, because A plus B whole square, A square plus B square plus 2AB, that formula we have applied here. So B square is here and B square is here, so we take it common. So it is A square plus B square sin square theta plus cos square theta plus 2AB cos theta, and we know that sin square theta plus cos square theta is what? That is 1. So this comes out to be A square plus B square plus 2AB cos theta. And what is this? What is OQ? From here OQ is what? R square. This is whole R square. So this is also my R square. तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाती है R की. R is equal to A square plus B square plus 2AB cos theta under the root. So this is the required result for magnitude of R. Then we move on to direction of R vector. Direction of R vector. Let resultant R vector makes an angle beta with direction of A vector. ये वाला जो एंगल मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, ये बीटा वेक्टर है जो ए वेक्टर की डायरेक्शन में रिजल्टेंट के साथ बना रहा है. सो देयरफॉर tan बीटा इन ट्राइंगल कर लेते हैं हम. इन ट्राइंगल ये पूरे वाली ट्राइंगल ले लेते हैं QON. इन ट्राइंगल QON tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan बीटा. यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? QN, और बेस क्या है मेरा? ON, एंड QN अपॉन OP प्लस PN. हमने QN हमने निकाला हुआ है. कितना है वो? दैट इज B साइन थीटा. और OP क्या है मेरा? A वेक्टर, ये B वेक्टर था, और PN इज Y B cos थीटा. तो ये मेरी वैल्यू आ गई tan बीटा की, विच विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर. तो ये जो रहेगा आपका B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा,
ये जो रहेगा आपका डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू ये डायग्राम भी मिटा दें। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर करा था। इट इज सिमिलर टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। यस, इट स्टेट्स, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम सबसे पहले। इट स्टेट्स that if two vectors acting on a particle at the same time be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point their resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point भी लिख देते हैं हम इसमें, drawn from the same point। एक बार दोबारा से इसको रीड करते हैं और समझते हैं कि कैसे। इट सेज दैट इफ टू वेक्टर्स, यहाँ पे मैं दो वेक्टर्स बना रहा हूँ, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। दिस इज माई ए वेक्टर एंड दिस इज माई बी वेक्टर, ठीक है। इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन भी हो गई इनकी, इसकी डायरेक्शन ये शो कर देते हैं। बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम फ्रॉम ए पॉइंट देयर रिजल्टेंट, यहाँ पे बाय दी टू एडजेसेंट साइड्स, तो हम ये बी वेक्टर जो है यहां से लेते हैं और पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं कुछ इस तरह से, और ये मेरा डायगोनल होगा, ये जो होगा मेरा रिजल्टेंट होगा। दिस डायगोनल विल बी दी रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगेन यहां से हम क्या करेंगे, क्यू एन ड्रॉ कर देंगे, इसको ओ पी क्यू और इसको आर हमने यहाँ पे ले लिया तो इसको ऐसे ले लेते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ पे इसको एन ले लेते हैं। अगेन दिस एंगल इज थीटा
and this whole angle will be also, because of this whole angle will be theta and this angle say beta. So अगर आप ऊपर वाला पोर्शन भूल जाओ, नीचे वाला पोर्शन अगर आप देखो तो ये ए वेक्टर है और यहाँ पे ये मेरा क्या है, बी वेक्टर है. सिमिलरली दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर. तो उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर की तरह से हो जाएगा. और उसी तरह से हमने इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है और उसकी डेरिवेशन फाइंड आउट कर देनी है. उसमें डायरेक्शन ऑफ आर फाइंड आउट कर देना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर फाइंड आउट कर देना है और हमारा ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है उससे कंप्लीट हो जाएगा. तो दिस इज फॉर योर होमवर्क, दिस यू कैन डू बाय योर ओन. सो इसको मैं एज इट इज यहीं पे छोड़ रहा हूँ. ठीक है जी. एक बार आपने घर पे इसको अपने आप ट्राई करना है किस तरह से करना है. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इसमें, देन यू कैन सेंड और राइट इन द कमेंट्स बॉक्स ऑल्सो. नेक्स्ट इज माई मोशन इन ए प्लेन. मोशन इन अ प्लेन. Let point object moving in xy plane with uniform velocity v vector. Let, इससे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करके बताते हैं सो दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू पीपल. इसको हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं और इसको हम वाई एक्सिस ले लेते हैं. यहाँ पे एक पार्टिकल लेते हैं जो पॉइंट ए पे पड़ा हुआ है. दिस इज द ओरिजिन, यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज, और फिर ये पार्टिकल आफ्टर दिस इज एट टाइम t1, ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा आफ्टर टाइम t2. इसको हम b वेक्टर, इसको हम करते हैं a पॉइंट और इसको हम करते हैं b वेक्टर से शो करते हैं. और इसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं r1 और इसका यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर इस तरह से कुछ जाएगा. इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r2. अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो यहाँ पे जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, दिस विल बी से x1 एंड दिस साइड इट सेज y1. इसी तरह से यहाँ पे अगर b के कोऑर्डिनेट्स देखूं तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे से x2 और इसके कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ y2. दैट इज इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x1 y1 और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है मेरे पास x2 y2. अब हम इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. नाउ आफ्टर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेट O is the origin and A and B are the positions at time t1 and t2 such that O A मेरा हो जाएगा that is your R1 vector and OB will be equal to what, that will be your R2 vector. तो OB ये पोजीशन वेक्टर यहाँ पे हो गया, OA मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया R1
और ओ बी मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया R2. So AB will be equal to so now here from OA plus AB is equal to OB implies यहाँ से AB आ जाएगा मेरे पास OB माइनस OA विच विल बी इक्वल टू OB क्या है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इसको हम AB वेक्टर से शो कर देते हैं. यस, इसको नोट कर लो आप. इन द मीन वाइल मैं इसको मिटा लूं. और इसको हम नंबर 1 दे देते हैं. यस, इफ द पोजीशन coordinates of the object A and B are x1, y1 and x2, y2 respectively, then R1 vector will be equal to x1 I cap plus y1 j cap. Similarly, R2 vector will become x2 I cap plus y2 j cap. Is that clear? तो ये वाली जो वैल्यूज हैं हम इसमें पुट करेंगे. Therefore R2 minus R1 vector is equal to x2 I cap plus y2 j cap minus x1 I cap plus y1 j cap. Yes, so x2 minus x1 I plus, and then it will be y2 minus y1 into j cap. So this will become your R2 minus R1, which is the displacement of the object. अब ये डिस्प्लेसमेंट आ गया मेरे पास. सो डिस्प्लेसमेंट तो आ गया, तो वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ अब मैं. देयरफॉर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, मेरे को पता है किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे हम. सो दिस विल समथिंग लाइक दिस. सो इट विल बिकम, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मेरा R2 माइनस R1, सॉरी वेलोसिटी हो जाएगी मेरी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन T2 माइनस T1. सो दिस विल बी माई वेलोसिटी. यहाँ पे हमने I और J कैप लगाया है. क्यों? I इज फॉर x एक्सिस एंड J कैप इज फॉर y एक्सिस.
और अगर मेरा यहाँ पे जेड एक्सिस होता, जेड प्लेन भी होता, तो उसमें हम साथ में के कैप भी लेते हैं। तो अभी ये जो पार्टिकल है दो प्लेन के बीच में है, दैट इज एक्स प्लेन एंड वाई प्लेन, दैट इज एक्स एक्सिस हियर एंड वाई एक्सिस हियर। So that is why we have taken here I cap and j cap only, not the k cap. So that is why here is x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap. So this is the velocity which was the motion in a plane. Thank you. चलो।